मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रत्युष कुमार है। मैं नेशनल पीजी कॉलेज में बीए सेकंड ईयर में हूँ। Good morning, sir. Okay. This is Sachin from Riva, Madhya Pradesh. I am pursuing my degree from Holkar Science College in the. My hobby is playing chess. Thank you, sir. Okay. Next participant, please. गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम सुनील कुमार निरंजन है। यूजी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पीजी एमटेक कंप्लीट कर चुका हूँ। करंटली अभी बीएसएनएल में जॉब कर रहा हूँ। मैं झांसी से हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। विजय लक्ष्मी, आपका हो गया इंट्रोडक्शन? सर यस, हो गया। यस और किसी का इंट्रोडक्शन बचा है? किसी का बचा हो तो प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अदरवाइज हम लोग डिस्कशन की तरफ बढ़ें। सर हम लोग डिस्कशन शुरू करें? हाँ जी चालू करिए आपका डिस्कशन। ओके, हाँ तो कौन सबसे पहले अपना व्यू रखना चाहेगा? रश्मि वर्मा। ओके सर मेरी आवाज आ रही क्लियर? यस यस आ रही है। सर मैं बताना, पहले की दुनिया से काफी बदल गई है कोरोना महामारी के कारण। तो सर इस बदलाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों एक विजन। रश्मि आपका नेटवर्क बहुत रश्मि आपका नेटवर्क बहुत वीक है। आपका भी पॉइंट हम लोग बाद में ले लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरे पार्टिसिपेंट से कि अपना भी पॉइंट रखें। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। यस Hello. यस Sir, coronavirus has deeply affected all of us, and due to this unprecedented pandemic, the complete world's economy is facing a stagnation. India is one of them. The government of India decided to overcome the crisis by strengthening its resolve. On 12th of May 2020, Prime Minister Mr. Narendra Modi announced Atmanirbhar Bharat Abhiyan and gave the slogan Atmanirbhar Bharat and Vocal for Local. This is done to revive every sector of the economy, from demand and supply to manufacturing, so that India can become self-reliant. This self-reliant India campaign aims at cutting down import dependency and focuses on production of local products. But the Self-India Reliant campaign does not advocate for being self-centered, because it is based on India's fundamental thinking and tradition, Vasudhaiv Kutumbakam, and hence focuses on the creation of more helping hands to the entire world. This Atmanirbhar Bharat Abhiyan focuses on 4 L's: land, labor, liquidity, and laws. It will be carried out in 2 phases. In the first phase, medical textile industries will be concerned, where the manufacturing and export can be promoted. And in the second phase, gems, jewelry, pharma, etc. will be considered. The entire campaign is based on 5 pillars. The first pillar is economy, that will have quantum jumps instead of incremental jumps. The second pillar is infrastructure, that will represent a modern India. The third pillar is system, that will be technology driven. Fourth one is vibrant demography, demography of the world's largest democracy. And the fifth pillar is demand. The economic package was announced by the Prime Minister on the same day, and that was 20 lakh crore rupees. This economic package was elaborated by the Finance Minister into 5 tranches. The first tranche focused on MSMEs, EPF, credit, Garib Kalyan, and it totally accounts for rupees 5,94,550 crore of the entire package. This first tranche helps the MSMEs by providing them collateral free loans to start up their new business. And second tranche
focus on farmers and migrants, and it totally accounts for rupees 3,10,000 crore rupees of the entire package. The second tranche helped the migrant workers by giving them free food grains for 2 months and affordable housing society under Pradhan Mantri Awas Yojana. Provision of one nation, one ration card is also made here so that the migrant workers can get ration from any of the ration shop in India. Coming to third tranche, the third tranche focuses on agriculture and allied activities. It totally accounts for rupees 1,50,000 crore of the entire package. The third tranche helps the agriculture sector by providing agriculture infrastructure fund. Apart from this, the third tranche also focuses on the promotion of animal husbandry, beekeeping, and herbal cultivation. PM Matsya Sampada Yojana, a scheme has also been launched by the government so as to develop infrastructure in aquaculture and fisheries. The fourth and fifth tranche will focus on coal, minerals, space, atomic energy, education, health, and ease of doing business. It totally accounts for rupees 40,100 crore rupees of the entire package. Now, the government has taken some other decisions too to reform other sectors like labor sector, coal sector, etc. First one is provision of gratuity after the completion of 1 year is made in labor sector. The second is in agriculture sector, government will formulate a law to provide choices to farmers so that they can purchase, they can sell their products at a reasonable price and interact with the large retailers transparent manner. Now, the government has also encouraging on coal gasification and coal liquefaction to reduce impact on environment. The defense sector is supposed to become self-reliant, and hence the government will ban the export of certain weapons and will focus them to be produced in our country as well. There will be the increment in FDI from 49% to 74% in the defense sector. Government is also focusing on technology-driven education. For that, PM eVidya is launched so as to provide digital education throughout the country. And there is a especially content for blind and hearing impaired as well. Mano Darpan, one of a psychosocial initiative formed by the government, and National Foundation Literacy and Numeracy Mission will get launched in December 2020. Apart from all this, government had also taken some of the decisions earlier as well, like Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, which is for poor, free distribution of cereals, grains, as well as gas cylinders to poor families, and direct cash transfer via Jan Dhan account to poor women. RBI has enhanced the liquidity by reducing the CRR, cash reserve ratio, and raised the borrowing limits of bank. However, this Atmanirbhar Bharat is said to be in parallel with Swadeshi movement, because Swadeshi movement was for the rejection of colonial exploitation and Western commodities. Here, Atmanirbhar Bharat is an attempt made by the government of India to find India's most legitimate place. But there are certain challenges as well to make India self-reliant, such as in this lockdown period, there is the lack in demand, and if people will not have their purchasing power, all infrastructure, all investment will go in vain. Hence, efforts should be made on increasing the purchasing power, and that can be and that could occur on focusing on greenfield infrastructure. The second problem is mobilization of finance. This lockdown period has created a scenario in which our Indian industries are not in a condition to stake private sector units, as well as Indian rupee is also lower than dollar, and hence it is not easy to borrow foreign markets. So efforts should also be made here to mobilize the finance by using Indian foreign exchange reserve in a strategical manner. However, I want to conclude that Atmanirbhar Bharat is a very good attempt to make India self-reliant. Self-reliant will prepare India for a tough competition in the global supply chain.
The thing which matters is that India wins this competition. The package of rupees 20 lakh crore announced by Prime Minister Mr. Narendra Modi focuses on laborers, migrants, farmers, poor people, etc., or of both organized as well as unorganized sectors. Thank you. Okay, thank you, Purima. Next participant, please. यस सर, मैं बोलना चाहूंगी Yes. Sure. सर, जैसा कि कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। उन्होंने कई घोषणाएं की है। इसके लिए उन्होंने बताया कि हमें वोकल फॉर लोकल, उन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, लोकल को जीवन मंत्र बनाने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस कोरोना ने हमें सप्लाई चेन का महत्व समझाया है, इसलिए हमें लोकल प्रोडक्ट को खरीदने तथा उनका प्रचार करने का आह्वान किया है। सर, बात करें आत्मनिर्भर का मतलब, तो इसका मीन्स होता है कि हम खुद का सपोर्ट करें इकोनॉमिक्स के टर्म में, हम खुद के रिसोर्सों पे रिलायंस हो। सर, ये आत्मनिर्भर की थिंग कोई न्यू नहीं है, इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पहले ही महात्मा गांधी जी ने इसकी बात की थी आत्मनिर्भर भारत की। उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज में अपने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। बात करें कि नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की और महात्मा जी के आत्मनिर्भर भारत की, तो दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत की बात करूंगी। उन्होंने भी कहा था कि जब तक हम खुद सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे तब तक इंडिया आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हमें खुद आत्मनिर्भर होने के लिए सेल्फ कंट्रोल एंड वांट्स को लिमिट करना होगा। साथ ही जब तक विलेज डेवलप नहीं करेगा तब तक इकोनॉमी में रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। हिंद स्वराज में उन्होंने कई पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें खादी और कटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, साथ ही विलेज को डेवलपमेंट करने के लिए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बनना चाहिए, माइग्रेशन को रोकना चाहिए, इकोनॉमी पे कंटिन्यू फोकस करना चाहिए और लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। अब बात करें कि नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की, तो उन्होंने भी सेम ऐसे 5 पिलर्स दिए हैं। पहला इकोनॉमिक्स, जो कि परिवर्तनशील वृद्धिशील परिवर्तन की जगह क्वांटम जंप पर बेस्ड होगा। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। तीसरा सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, जो 21वीं शताब्दी की प्रौद्योगिकी पर बेस्ड होगा। और फोर्थ है डेमोग्राफी, जो इकोनॉमिक्स के लिए एनर्जी का सोर्स होगा। और लास्ट है डिमांड, इसमें है कि मांग और आपूर्ति की भरपूर उपयोग होगा। और इसके साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास और कटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट करने की बात की है, जो कि सेम एज अ गार्डियन ही है। और सर, आत्मनिर्भर भारत की आर्थिक घोषणा के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ पैकेज की भी घोषणा की है, जो कि जीडीपी का 10% है। और सर, बात की जाए नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी कई आर्थिक सुधारों के लिए घोषणाएं भी की है, जैसा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। रक्षा विनिर्माण के लिए उन्होंने ऑटोमेटिक रूट से निवेश सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की बात की है। साथ ही सामाजिक और संरचना के क्षेत्र में निवेश के लिए उन्होंने विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लागू करने की बात की है। साथ ही उन्होंने अनाज, तेल, खाद्य, आलू, प्याज, इन सबको रेगुलेट किया जाएगा। इनके मूल्यों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, इनका निर्धारण किसान स्वयं करेंगे। और सर, उन्होंने इन सब के लिए जमीनी सुधार के लिए उन्होंने भी कुछ पे फोकस किया है, जैसे लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस पर फोकस किया है। और सर, बात की जाए कि आगे की राह क्या हो कि ये सक्सेस हो, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो, तो इसके लिए सबसे पहले भारत को बुनियादी स्तर पर विश्व स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास करने की जरूरत है। जैसे कि हमें औद्योगिकरण को डिसेंट्रलाइज करना होगा, उन्हें विलेज में लाना होगा, छोटे कस्बों में उनका विकास करना होगा। और सर, पिछड़े राज्यों में जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वहाँ पे ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प उद्योग और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मतलब उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर का विकास हो सके। वहाँ पे लोग सप्लाई चेन का महत्व समझें, जिससे इस कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए रूप में निकले। बस इतना ही। Okay, thank you, Vijayalakshmi. Next participant, please. Sir, I would like to speak
Okay. Due to the okay, due to the occurrence of unprecedented COVID-19 pandemic, the state of world today teaches us that a self-reliant India is the only path to fulfill the dream of 21st century India. It is said in our scriptures, Eshaha Pantha, that is self-sufficient India. The definition of self-reliance has undergone a change in the globalized world. Country talks about self-reliance, it is different from self-centered. Some basic facts about the Atmanirbhar Bharat. Indian government announced a special economic package as part of the relief measures aftermath of COVID-19 worth rupees 20 crore or 10% of India's GDP in 2020, aimed towards achieving the mission. The package emphasizes on land, labor, liquidity and laws. It will cater to various sections including cottage industry, MSME, laborers, middle class and industries among others. And 5 pillars of self-reliant India. The first one is economy, which brings quantum jump and not incremental change. And second one is infrastructure, which would become the identity of India. And third is system, based on first century technology driven arrangements. Fourth is vibrant demography, which is our energy for self-reliant India. And the last one is demand, whereby the strength of our demand and supply chain should be utilized to full capacity. Several reforms are announced to make India a self-reliant economy and mitigate negative effects in future. Some of the reforms are simple and clear laws, rational taxation system, supply chain reforms in agriculture, capable resources, and robust financial system. If we compare India's relief package to other countries, uh, US spends 13% of its GDP, Japan spends 21.1% of its GDP, Australia 10.8% of its GDP. 5 phases of Atmanirbhar Bharat. Phase 1 will include business including MSMEs, be vocal for the local, and the phase 2 is poor including migrants and farmers, because a self-reliant farmer is fundamental to the of a self-reliant India. And the phase 3 will include agriculture, and the phase 4 will include new horizons of growth, under which online learning, birth of social enterprises, in which Achhe Paal is the world's largest NGO-run school meal program. Adult Innovation Mission was set up to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country. And social media force multiplied during this pandemic, and digital platforms set up uh, by governments during COVID-19 are Arogya Setu, Corona Kavach, Sampark, Sahyog, direct benefit transfer, which played very role in Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, distributing rupees among the poor, and WhatsApp chatbot. And the phase 5 is government reforms and enablers. There are some challenges which are associated with the Atmanirbhar Bharat. These challenges are issues related to liquidity, lack of demand, lack of backward linkages, burgeoning fiscal deficit, difficulty in mobilizing finance. Definitely, self-reliance will prepare the country for tough competition in the global supply chain, and it is important that the country wins this competition. Self-reliance would need a paradigm shift in our approach towards many things. First and foremost in the research and development, and the second area of the focus should be education. These two areas, the key to self-reliance, and should be the focus of policy makers. Thank you, sir. Okay, thank you, Tanu. Next participant, please. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Anju. Yes. सर ये जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है और जिसे हम आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी
उन्होंने उनका ये विजन रहा है कि वो जो इंडिया है उसको सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। और मैं मैं बताना चाहूंगी कि ये जो सेल्फ रिलायंस का जो उनके दिमाग में जो आइडिया आया था वो कहाँ से आया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पैंडेमिक जो कोरोना वायरस कोविड-19 का जो वायरस फैल रहा है ये चाइना से फैला है, और ये भी हम जानते हैं कि इंडिया जो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करता था चीजें वो चाइना से ही करता था। तो जब ये चाइना में वायरस फैल रहा था तो जो चाइनीज उन लोगों ने पहले लॉकडाउन भी लगाया था, जिसकी वजह से वो सप्लाई नहीं कर पाए थे जो भी हम जो चीजें इंडिया लेती थी। तो वहां से इंडिया में भी काफी चेंजेस आए, वो चीज नहीं बना पाए जिसके लिए वो हाईली डिपेंड होते थे चाइना के ऊपर। साथ ही साथ में ये भी माना जा रहा है कि अगर बाई चांस यहाँ पे इंडिया इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती चाइना पे तो शायद लोग इतना ट्रैवल नहीं करते वहाँ, और शायद ये पेंडेमिक थोड़ा और लेट इधर इंडिया में आता भी या नहीं आता, ये भी एक डाउटफुल रहा है कि ट्रैवलिंग वहाँ कम होती इतना डिपेंडेंट अगर हम नहीं होते। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है चीज़ें और इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। जैसा कि 2015 के बाद से 2020 तक का अगर डाटा देखा जाए तो अभी तक जो ट्रेड डेफिसिट रहा है वो हमेशा नेगेटिव ही रहा है। मींस कि इंडिया जो है इम्पोर्ट कम ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है चीज़ें। अगर मैं 2019-20 की बात करूँ तो इसमें इम्पोर्ट किया है इंडिया ने 2.3 ट्रिलियन रुपीस का, और जब एक्सपोर्ट किया है 1.6 ट्रिलियन रुपीस का किया है, और ट्रेड डेफिसिट इसमें माइनस में गया है 0.7 ट्रिलियन रुपीस का। अब सर इतना हाईली इम्पोर्ट करता है चीजें, इवन यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया जो भी चीजें, उसका जो रॉ मटेरियल आता है उस पर भी ये दूसरी कंट्रीज पे ही ज़्यादा डिपेंड रहता है। अब मैं आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करूँ तो जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि ये 5 प्लस के ऊपर वर्क कर रहा है। इसमें डिमांड है, इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम एंड डेमोग्राफी वाइब्रेंट। जैसा कि सब लोगों ने बता दिया तो मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगी, अभी ज़्यादा मैं इसके बारे में डिटेलिंग नहीं करती हूँ। पर ये पहली बार तो नहीं हो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। हमारी हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो ये आत्मनिर्भर भारत का पॉइंट पहले भी उठ चुका है, इंडिपेंडेंस से पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी। इंडिपेंडेंस से पहले बताया तो जैसा कि विजय लक्ष्मी ने बताया कि बाइकआउट किया था, और हिंदी जो बुक है हिंद स्वराज उसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से हमें इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहिए और दूसरे जो देश हैं उसकी चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए। बाइकआउट मूवमेंट भी जो बंगाल पार्टीशन के टाइम पे आया था 1905 में, उसमें भी गांधी जी ने यही कहा था कि खादी का यूज़ ज़्यादा करो और जो ब्रिटिश मेड चीज़ें हैं उनका यूज़ कम करो, बाइकआउट करो, और इसमें ये सफल भी रहा था काफ़ी हद तक नेशनल मूवमेंट के टाइम पे ये। तो सर ये जो 12 मई 2020 में ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ये पैंडेमिक का जो लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन चल रहा था उससे 3 दिन पहले ही इसको अनाउंस किया था। और सर इसमें उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये काफ़ी हद तक हम सफल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर काफ़ी कैपेबिलिटी है इस चीज़ को कवर करने में। जैसे कि पीपीई जो अगर देखा जाए तो इंडिया में इसका उत्पादन नहीं होता था, लेकिन अब ड्यूरिंग लॉकडाउन जैसे कि हमारी सिचुएशंस बन गई हैं तो अब इसमें 1.5 लाख पर डे इसमें प्रोडक्शन हो रहा है इसका पीपीई का। और काफ़ी इसमें 5G नेटवर्क अनाउंस किया है मुकेश अंबानी का कि 5G नेटवर्क है वो मेड इन इंडिया, वो भी उसको प्रमोट करेंगे। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भी ये बोला है कि धीरे धीरे हम 101 जो आइटम्स हैं जो हम बाहर से खरीदते थे उसको भी हम बैन करेंगे। और 21,000 करोड़ जो IIT अलुमनी काउंसिल है उसने भी ये इतना कंट्रीब्यूट किया है सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने में। जैसा कि हमें ये भी पता है कि हम एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से पहले हमें उस चीज़ को उतनी क्वालिटी और अच्छी इम्प्रूव करके चीज़ें बनानी पड़ेंगी, इसके बाद ही अगर हम बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा। जब हमारे पास चीज़ें अच्छी होंगी तो लोग वैसे ही इन चीज़ें खरीदेंगे। अब इंडिया में हम ये कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि डायरेक्टली हम चीज़ों को बैन कर देंगे, बाहर से कोई चीज़ इंडिया में नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बाहर भी चीज़ें आएंगी और बाहर की चीज़ें भी आएंगी, लेकिन हम यहाँ की जो क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे इंडिया के
प्रोडक्ट्स की, तो वो इंडिया में एज वेल एज पूरे वर्ल्ड में वो चीजें बिकने लग जाएंगी। तो हम हो सकता है आने वाले समय में इंपोर्ट कम करें चीजें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें, और ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा था वो भी इम्प्रूव हो जाए और हम एक्सपोर्ट में ज्यादा काम कर सकें। सर इसका एक मैं बताना चाहूंगी कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगा तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया अगर बनेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे काफी सारे, तो इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो फैल रहा था वो भी कम होगा। इंडस्ट्रीज जब बनेंगे तो जो उसका प्रॉफिट होगा, जब इंडिया की ही चीजें यूज करेंगे, इंडिया से ही रॉ मटेरियल बनेगा और फिनिश्ड गुड भी इंडिया में ही होंगी, तो फिर इसका कहीं ना कहीं एक तो ये असर पड़ेगा कि इम्प्रूवमेंट होंगे हमारी इंडिया में काफी, और जो भी प्रॉफिट होगा वो इंडिया में ही रहेगा। जैसा कि अगर हम हिस्ट्री के टाइम पे देखें तो जो कंपनीज थी वो यहाँ से चीजें लेके जाती थी, जो प्रॉफिट था वो दूसरे अपनी कंट्रीज में ले जाके उसको यूज करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अगर सेल्फ रिलायंट इंडिया जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो इंडिया को काफी बेनिफिट होने वाला है इससे। सर कई सारे पैकेज भी अभी लॉन्च किए गए हैं, जैसा कि अभी पूर्णिमा ने बताया और बाकी लोगों ने भी बताया कि पैकेज अभी लॉन्च किए गए हैं 20 लाख करोड़ का, जो कि अबाउट 10% है हमारी जीडीपी का। उन्होंने मोदी जी ने फोकस भी किया है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस पे। और इसमें क्या होगा, किसमें क्या किया है, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली हैं किसान के लिए, और अभी पैंडेमिक के दौरान उनको खाना भी दिया जा रहा है सही से, और वेजेस भी उनको मनरेगा के अंडर जो वेजेस उनको कम थे लेकिन अब उनको भी इम्प्रूव कर दिया गया है। वुमेन्स के खाते में अभी 3 महीने तक 500 रुपीज पर मंथ दिए गए थे, यानी 1500 रुपए टोटल दिए गए हैं जो गरीब औरतें थी और लड़कियां थी उनको। तो सर ये सारा का सारा आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही आ रहा है। थैंक यू सर। Okay, thank you, Anju. Next participant, please. जब सर Yes, sorry. जब जब कोरोना के टाइम में जब सारा वर्ल्ड सर सफर कर रहा है कोरोना से, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट इंडिया का उन्होंने एक बात कही सर। उसके उन्होंने 5 पिलर बताए थे। उन 5 पिलर में सर 5 पिलर में इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम कैसे हम सर स्ट्रॉन्ग करें, और दूसरा है सर ये डेमोग्राफी है, तीसरा इकोनॉमी है, फिर उसके बाद डिमांड कितना है। अगर हम किसी चीज को बनाते हैं तो सर उसका डिमांड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा सप्लाई अच्छी होगा, सप्लाई ज्यादा हो तो उससे इकोनॉमी को फायदा होता है। तो सर प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को उन्होंने सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने अपना एक सुझाव दिया था। तो उन्होंने इसमें लगभग 20 लाख करोड़ रुपीस का उन्होंने एक पैकेज दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि सर इस पैकेज को हम मतलब कि जो छोटे उद्योग है जैसे एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ फायदे उन्होंने बताए थे तथा जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें हम इन्वेस्ट करने के लिए, या उन्हें हम मतलब कि ये कुछ जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं या उनसे मिडिल क्लास जो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं उनको वो सहयोग प्रदान करेंगे। सर एक तरह से हम देखेंगे तो अगर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब सर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान का मतलब इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में थी, तो उस समय जापान ने किया क्या कि सर उसने सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर उसने खुद सर प्रोडक्ट बनाया, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या हर चीज को। तो उसने सर एक तरह से एक देखा जाए सर उसने अमेरिका जो सर उसने वो इम्पोर्ट करता था सर उसको उसने बंद नहीं किया, लेकिन सर उसने ये अपने नागरिकों से कहा था कि आप उन चीजों को खरीदे ना। तो मतलब ये नहीं कि सर हम उसका किसी दूसरे देश के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, बल्कि सर हम खुद में एक सेल्फ डिसिप्लिन लाकर उन चीजों को नहीं खरीद रहे हैं। जिससे हुआ क्या कि सर जापान आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लगभग $5.6 ट्रिलियन के आसपास उसकी इकोनॉमी है। सर उसके पीछे रीजन ये रही था सर उसके सिटीजन, सर उसके सिटीजन जो थे उन्होंने एक निश्चित तौर पे उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने मतलब अपने देश में जो बनी हुई चीजें हैं उससे खरीदा, जिसकी वजह से आज हम देखेंगे सर तो कार मार्केटिंग में हुंडई हुई, ये कंपनियां जापान से आगे निकली और उन कंपनियों का उन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया, तो ग्लोबलाइजेशन से भी उनको एक फायदा हुआ और उन्होंने अपने सामान को इम्पोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया सॉरी।
तो इससे सर हुआ क्या कि उनकी इकोनॉमी सुधरी। आज सर हम मतलब आज हम जापान को वन ऑफ द डेवलप्ड एंड कंट्री कहते हैं, वन ऑफ क्या सर मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कहते हैं एशिया में और वर्ल्ड में पूरी। तो सर वही है इंडिया में भी। सर इंडिया में अगर हम देखें तो सर लोकल फॉर वोकल, लोकल प्रोडक्ट पे हम मतलब ज्यादा, उसके कहा गया है कि लोकल प्रोडक्ट पे हम ज्यादा निर्भर हों। तो मतलब लोकल प्रोडक्ट जितना हम खरीदेंगे उससे फायदा ये होगा कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगी। हमारी इकोनॉमी जितना स्ट्रेंथ होगी उतनी ही हमें मतलब कि उतना ही हमें फायदा होगा। यहाँ के इकोनॉमी को बेहतर करने से ये होगा कि सर यहाँ हर चीज का हेल्थ सेक्टर हुआ या फिर हेल्थ सेक्टर हुआ या रिसर्च वगैरह हुए, उस सबको हमें फायदा मिलेगा। तो सर फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह ये इंजीनियरिंग वगैरह में, तो उन्होंने IIT से रिलेटेड जितने भी हैं वहाँ ग्रेजुएट्स हैं उनको उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको हम फैसिलिटीज देंगे और वो यहाँ रिसर्च करेंगे। फिर जैसे एम्स वगैरह हुआ तो वहाँ से मेडिकल वगैरह से रिलेटेड हो गया। फिर कुछ जैसे ये क्या ऑयल कंपनियां जैसे गेल वगैरह हुआ, तो मतलब उन्होंने कहा कि हम इससे एनर्जी सेक्टर में इसका हम यूज करेंगे। तो मतलब कि इसका सर ये बात है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया में जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं उनको हम एक तरह से प्रोत्साहित करेंगे कि सर वो एक ग्लोबल कंपनी के रूप में उभरे। और इसका एक सर मेन रीजन यही है कि अगर हम देखें तो कोई भी कंट्री है तो मतलब कि सर कोई भी कंट्री डेवलप तभी बनी है जब उसने अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है। सर इंपोर्ट कर हम डेवलप कभी बन ही नहीं सकते हैं, तो इंपोर्ट करना होता है। और सर पिछले साल 2019 में देखा जाए तो इंडिया ने चाइना से $75 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। तो सर $75 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम किसी एक तरह से सर भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो देखे चाइना के साथ वो निगेटिव में था। तो सर इसका बहुत बड़ा रोल था। और सर अभी जो हुआ है कुछ चाइना के साथ ये, तो उसका ये गोलवान रवैली वगैरह या उससे पहले भी ये मतलब बैन करने के लिए, तो सर इसका पीछे रीजन यही है कि सर हम डायरेक्ट बैन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर हम मेन चीजों के लिए ही चाइना पर निर्भर है। या जिस तरह से ये मेडिकल में जो सर दवाइयाँ हैं उनका जो रॉ मटेरियल है जिससे वो दवाइयाँ बनती है वो सब सारी चाइना से आती हैं। सर अगर हम बैन कर दिए तो सर अगर चाइना ने वो सप्लाई बंद कर दिया तो हमारा सब मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो एक तरह से गिर जाएगा। तो हम ये डायरेक्ट ये कर नहीं सकते हैं, लेकिन सर उसको हम स्टेप वाइज में करेंगे। स्टेप वाइज में करने का फायदा ये हुआ कि सर जैसे कि हमने ये अभी इसका एक रीजन भी मिला है सर, जैसे कि हम अब देखें तो पीपीई किट पहले हम सारा इम्पोर्ट करते थे, अब सर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी सर हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए का पीपीई किट नहीं 7,000 करोड़ रुपए का पीपीई किट एक्सपोर्ट किया है विभिन्न मतलब बहुत सारे देशों को। सर तो पहले उसके इंडिया में पीपीई किट 0 बनती थी, लेकिन सर हमने उसको एक्सपोर्ट कर आज सर हम वर्ल्ड में 2nd नंबर पे हैं पीपीई किट्स एक्सपोर्टर में आफ्टर चाइना। और सर और देखा जाए जिस तरह की हम पहले सर 5G नेटवर्क के लिए हुआई जो चाइनीज कंपनी है उस पर हम डिपेंड होने वाले थे, लेकिन सर अभी जियो ने ही ये आत्मनिर्भर भारत से ही रिलेटेड में सेल्फ रिलायंट इंडिया से ही रिलेटेड में उसने कहा है कि सर ये मतलब कि हम 5G टेक्नोलॉजी जो है खुद का बनाएंगे, मतलब हम किसी देश से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम खुद बनाएंगे। सर तो उसका एक फायदा हुआ है कि अगर हम उसका देखें तो सर 5G टेक्नोलॉजी में हम दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो जैसा कि सर दूसरे देश ब्रिटेन और अमेरिका ने ये कहा है कि चाइना जो हुआई कंपनी है चाइनीज गवर्नमेंट को एक कुछ ये अब कुछ मतलब कि टेक्नोलॉजी या कुछ उसके जासूसी का काम कर रहा है। तो सर इससे सर एक तरह से राष्ट्र के लिए भी खतरा है। सर राष्ट्र की जो ये खुफिया जो चीजें हैं सर वो शेयर हो जाती है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ दिन पहले लगभग 100 चाइनीज ऐप को उन्होंने बंद किया है सर। तो सर चाइनीज ऐप जिसमें टिकटॉक वगैरह बहुत सारे ऐप हैं, तो सर हमें इन सब ऐपों को हमें बंद करने जिस सर कैम स्कैनर वगैरह हुआ जिसको हम लोग यूज करते हैं सर उस सबको बंद तो कर दिए हम, लेकिन सर उसका एक नुकसान ये है कि सर हमें वो वैसे बनाने भी होंगे क्योंकि सर सिर्फ बंद करने से नहीं होगा। तो इसीलिए सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IT मिनिस्ट्री के द्वारा उन्होंने कुछ इनोवेटिव लिए हैं कि वो अब कुछ जैसे ऐप जो इंजीनियर ऐप बनाएगा उससे वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करेगी। तो सर इससे होगा क्या कि जो अच्छे मतलब कि इनोवेटर हैं या इंजीनियर्स हैं वो आगे आएंगे इस फील्ड में। तो वही सर हर सेक्टर के साथ है। अगर सर टेक्नोलॉजी वगैरह का हर सेक्टर लिया जाए या सर ये जापान ये कोरिया फिर से हांगकांग साउथ कोरिया हांगकांग या ये सिंगापुर वगैरह का लिया जाए तो सर वो उन लोगों ने भी यही किया है सर, टेक्नोलॉजी और IT में उन्होंने इन्वेस्ट किया। और सर अपने जो IT और
में इन्वेस्ट कर कर सर उन्हें फायदा ये मिला कि सर आज वो मतलब कि दुनिया में सबसे बेहतर क्वालिटीज के इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में उनका ही नाम है। तो सर वही हमें इंडिया में भी करना होगा। हर चीज में सर हमें अभी लोकल फॉर वोकल के लिए सर हमें करना ये होगा कि हमें एज ए पब्लिक हमें भी सपोर्ट करना होगा। हमें सर वही चीजें खरीदनी होगी, ना कि सर ये फॉरेन ब्रांड के पीछे भागना होगा। थैंक यू सर। Okay, thank you, Saurav. Next participant, please. Hello. Yes. Good morning, sir. Good morning. आज तक ये भारत जैसा महान देश अपनी अधिकतर निर्भरता अन्य विश्व के अन्य देशों पर रहा है, लेकिन आज इस आत्मनिर्भरता की ओर भारत जैसा देश अत्यधिक तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये देखा जाए तो सर, बात की जाए प्राचीन काल से ही तो भारत अन्य देशों पर ज्यादा निर्भर रहा है, लेकिन इसकी जो मेंटालिटी थी, इसके जो पीछे की सोच थी, वो बहुत प्राचीन परंपरा से रही है, लेकिन वो नहीं हो पाई। और चाहे बात की जाए तो महात्मा गांधी की, उन्होंने भी आत्मनिर्भरता की ओर बहुत कदम उठाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब गया। और आज ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये इस कदम को उठाए हैं, ये उनकी आज की सोच नहीं है, बल्कि ये काफी पहले की सोच है। देखा जाए तो सर, राफेल विमान हो या फिर कुछ भी पिछली चीजें कुछ भी हो, सब में कहीं ना कहीं ये था कि ये भावना थी कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। बात की जाए, जैसे कि अभी सौरभ ने बताया कि जापान की बात किया, जापान सर जिस टाइम वहां पे परमाणु हमला हुआ था, वो कितना त्राही त्राही हो गया था, उसकी इकोनॉमी कितनी नीचे चली गई थी, लेकिन उसने लगभग 20 वर्षों तक अपना किसी अन्य देशों से सहयोग नहीं लिया, बल्कि उसने अपने खुद की प्रोडक्टिविटी की, खुद हर चीजें बनाई, और 20 वर्षों बाद आज कितना आगे निकल गया। निश्चित रूप से भारत को भी ये कुछ समस्याएं जरूर उत्पन्न होगी, इससे महंगाई जरूर बढ़ सकती है, लेकिन सर कुछ वर्षों बाद जरूर भारत चाइना से आगे जा सकता है। जैसा कि बात की जाए एमएसएमई की सर, तो इसमें जो गांव के कुटीर उद्योग हैं या लघु उद्योग हैं, इनको कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। इनकी इस टाइम देखा जाए तो सर, खेती बाड़ी में कुछ दिन पहले काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, तो इससे प्रधानमंत्री जी ने सबको किसान निधि के तहत उन्हें 2,000 रुपए, लगभग 2 महीने में 2,000 रुपए देने का निर्णय लिया, और ये मिल भी रहा है। तो ऐसे सर छोटे छोटे उद्योग जो हैं ये काफी विकसित हो रहे हैं, और जो लोगों के रोजगार बंद हो गए थे सर, इससे वो भी अब जो कुटीर उद्योग हैं या लघु उद्योग हैं, इन्हें जब बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा। आज देखा जाए सर, कृषि में तो कृषि अब धीरे धीरे काफी उन्नति कर रहा है। हम सब सर, हम स्पेशली गांव से बिलोंग करते हैं, तो देखते हैं कि पहले सब्जी की कीमत काफी डाउन थी, लेकिन आज कुछ दिनों से सब्जी वगैरह, चाहे वो आलू हो या फिर हर चीजें, तो किसान को इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट ही हो रहा है। और बात की जाए सर, इस टाइम तो पीएम मोदी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, तो इसके तहत जो उद्योग धंधे हैं, व्यापार हैं, या फिर कोई भी बिजनेस हो, सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन बात यह है कि सर, ये कहाँ तक सही हो सकता है यह भी देखना है, क्योंकि हर चीजें कागज पर लिख देना ही ठीक नहीं है, बल्कि उस पर देश के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उस पर अमल करें। पीएम के इस घोषणा से सर, उद्योग धंधे जब बढ़ेंगे तो इससे भारत की इकोनॉमिक रेट बहुत ज्यादा होगी। सर आज जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा अगर इस पर लगाया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की ओर लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सर आने वाले टाइम पर भारत जरूर उन्नति करेगा। और बात की जाए सर, तो जो अमीर हो या गरीब हो, अब सबको समान शिक्षा और समान चिकित्सा या फिर अन्य चीजें, सभी पर सबका समान अधिकार है। अब सर, अगर नई शिक्षा नीति लाई गई तो कहीं ना कहीं इसमें भी आत्मनिर्भरता की ओर भारत एक कदम बढ़ा रहा है। चाहे वो उसमें ये हो कि हाँ, छोटे बच्चों को ही कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। अभी तक ये रहता था कि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद या फॉरेन चले जाते थे, तो अब ये नहीं होगा, क्योंकि उन्हें रिसर्च के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए उन्हें खुद यह भारत देश खुद उन्हें हर चीजें को व्यवस्था दे रहा है। इसलिए हम अब भारत आत्मनिर्भर की ओर जरूर बढ़ रहा है। और बात की जाए सर, जैसे कि सर भारत अब लैंड, लिक्विडिटी, लेबर और लाज सभी पर बल दे रहा है, मतलब कि भूमि हो या फिर श्रम हो, सब पर बल दे रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सचिन। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना व्यू पॉइंट रखें।
और साथ में ये भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये देखिए हम लोग आपसे थोड़ा एक स्पेसिफिक डिस्कशन की अपेक्षा करते हैं, डेटा के साथ, एग्जांपल्स के साथ। एक पॉलिटिकल भाषण और आपका जो एक डिस्कशन है या टीवी डिबेट और आपके डिस्कशन में अंतर होना चाहिए। तो थोड़ा अगर फैक्ट्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ, फिगर्स के साथ अगर आप अपनी बात रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, थैंक यू सचिन। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। हेलो। यस। मनोरंजन, कोई दो राय नहीं है, ये फैक्ट है कि भारत को आज आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन बात आती है कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो अंजू जी ने कहा कि चीज़ों को बॉयकॉट करके उस तरीके से करके भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम भारत की इकोनॉमी में सुधार की बात करें तो 90 में ग्लोबलाइजेशन लाया गया, एलपीजी पॉलिसी लाई गई, उसी ने मेजर चेंजेस भारत में ला के दिए। और बाकी कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके लिए भारत दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज। तो मेरे हिसाब से आत्मनिर्भर की जो परिभाषा होनी चाहिए, आत्मनिर्भर का जो तरीका होना चाहिए, वो इस तरीके का होना चाहिए कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पर उतनी ही रहे जितनी उनकी हमारे ऊपर है। आज अगर हम देखते हैं कि भारत में ट्रेड डिफिसिट है, कि हम बाहर से तो सामान बहुत सारा मंगा ले रहे हैं, लेकिन अपना सामान हम वहाँ पर बहुत कम भेज पा रहे हैं, तो ये आत्मनिर्भरता को नहीं दर्शाता है। अगर हम उतना ही सामान दूसरे देशों को भी भेज ले रहे हैं जितना कि हमारे पास आ रहा है, तो ये दिखाता है कि हम आत्मनिर्भर हैं और ग्लोबलाइजेशन का भी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम केवल भारत ही के अंदर वो चीज़ों को बनाने लग जाएं, अपने यहाँ की संसाधनों को पूरा करने लग जाएं, तो मेरे हिसाब से वो भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, प्लस देश के विकास के लिए भी हानिकारक होगा। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम है, वो नेचुरल है, हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हमें गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम इंडिया में इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बाहर से पेट्रोलियम मंगा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में हम इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं यहाँ पर कि हम अपने उस ट्रेड डेफिसिट को टेक्नोलॉजी से पूरा कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस और कई सारे कदम उठाए हैं जो काबिल तारीफ है। कोरोना के टाइम में ये विचार आया, वो आना लाजमी था, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशनें थी कई सारे देशों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कई सारे प्रोडक्ट्स रोके गए। जैसे भारत के पास HCQ था जिसकी अमेरिका ने डिमांड किया, लेकिन सभी को अपनी कंट्री की डिमांड्स को फुलफिल करने की पहले ज़रूरत महसूस हुई, तो भारत ने उसको मना किया, बाद में हमें उसको पूरा करना पड़ा। लेकिन HCQ के लिए जो रॉ मटेरियल आता था वो हमारे पास चाइना से आता था। तो हमने देखा कि ऐसी कई सारी लाइफ सेविंग चीज़ें हैं जो हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, उनका एटलीस्ट मिनिमम प्रोडक्शन तो हमारी कंट्रीज में होना चाहिए, ताकि किसी वर्स्ट कंडीशन में हम उन सारी चीज़ों को भारत में प्रोड्यूस करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। तो इन चीज़ों के तहत ये भी आत्मनिर्भरता का चीज़ आया है। तो मैं यही कहूँगा आत्मनिर्भरता में कि जो सबसे पहले जो फोकस करना चाहिए वो अर्थव्यवस्था पर फोकस करना चाहिए आत्मनिर्भरता के लिए, टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए आत्मनिर्भरता के लिए, और थर्ड वन होगा कि यहाँ का जो सोशल डेवलपमेंट है उसके लिए भी। तो बात करें अर्थव्यवस्था की, आज हमारा व्यापार कई सारे देशों के ऊपर निर्भर है, बहुत हद तक निर्भर है, कि अगर हमें वहाँ से रॉ मटेरियल नहीं मिलता है तो भारत उन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, अपने मार्केट को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, कैश फ्लो नहीं करा पाएगा। दूसरा, जो सामान हम बाहर बेचते हैं वो सारी चीज़ें भी हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में आज भारत काफ़ी पीछे है। डिफेंस का सबसे ज़्यादा हम सामान खरीदते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मोदी जी ने जो प्रयास किए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो काबिल तारीफ है। टेक्नोलॉजी के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, वो मेक इन इंडिया पॉलिसी लेके वो आए हुए हैं कि भारत में ही लोग आके बनाए ताकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो सके। लेकिन उन चीज़ों के साथ साथ मैं यह भी, अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज अपना भी पॉइंट रखें। Good morning, sir, to and all of you. Yes, Sachin, please. Sir, self-reliant India means Atmanirbhar Bharat has started during the when India is unlocked. So their meaning is not only the self-reliant India, and he want to self-reliant person with Corona, but self-reliant India
has the vision of our Prime Minister Shri Narendra Damodar Modi. So for self-reliant our nation. As we know that India is a developing country, and each developed country has a self-reliant. So if we want to develop, count in the developed nation, so first we have to become a self-reliant. So we not said that we have to self-reliant on everything, but we have to self-reliant on the our basic life support material. So that is also helpful for the our economic development of the country. We know that we very well know that the India is the second largest. India has second largest mobile market in India, but we know there is a very small manufacturing industry in India who prepare mobile. So this is the and this help in the growth of economy to we produce mobile on the India mobile market on India. We know that when Corona has started in India in the early of March, the production of PP kit in India is negligible as zero. But after 2 months on the May, before starting May, the production of PP kit is 1.5 crore per day. So that this shows that we will become the self-reliant. On the July 2020, Mukesh Ambani, Jio Honor has launched the Made in India 5G network. This also shows that we become the self-reliant. The first mention of become the self-reliant during the announcement of coronavirus epidemic related economic package of 20 lakh, which is launched on the 12th May 2020. Our finance minister has totally said that self-reliant nation means self-reliant India does not mean to cut off from the world, but we will work with the world by depending on ourselves. The law and IT minister Sri Ravi Shankar Prasad has also saying that does not mean to isolating away from the world. He welcomes the foreign direct investment and he welcomes foreign technology, but he want to made in India. Due to self-reliant, there is a increase in employment in India. We become a developed country. For the self-reliant, first we have to focus on our education, health, and youth. Due to new education policy, our education become the good, and we should focus on our health and youth. There is a large number of youth in India. So they are become they can reach our India in a developed country. So that is a one more step on the self-reliant nation. Thanks, sir. Thank you, Stan. Next participant, please. और कोई अपना भी पॉइंट रखना चाहेगा या किसी को अपनी बात दोबारा रखनी है? हेलो सर। सर मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में पहले नोकिया के मोबाइल काफ़ी चलते थे, लेकिन उस मोबाइल में अब अगर हम अब देखें, अब की सिनारियो में अगर हमें देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो बहुत ही कम हम देखेंगे कि नोकिया के मोबाइल अब चल रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ कि नोकिया की जो कंपनी है, उन लोगों ने जो अभी नया मॉडर्न एरा चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अपना मॉडल जो था नोकिया के मोबाइल्स का वो चेंज नहीं किया जल्दी। इसकी वजह से वो इतना पीछे कंपनी चली गई है। तो हमें जो सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम दूसरी कंट्रीज से कहीं ज़्यादा पीछे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरी कंट्री से बहुत पीछे बिछड़ते जा रहे हैं। हम अभी के तो देख रहे हैं कि अभी करंट में हमें क्या चाहिए, लेकिन हम आगे डेवलप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो इस चीज़ को सर ध्यान में रखते हुए कि दूसरी कंट्रीज से भी हमें थोड़े एग्जाम्पल लेके फिर इस जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर यहाँ पे जो मारुति सुजुकी अभी आप कंपनी देख रहे हैं कार की, 1980 में ये सिर्फ मारुति एक कंपनी थी, उसका ये कंपनी थी तो वो इंडिया की कंपनी थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि ये जो कार बना रहे थे तो वो काफ़ी महंगी भी हो रही थी और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी उनकी। लेकिन सर इन्होंने एक ज्वाइंट एग्रीमेंट बनाया था, ज्वाइंट वेंचर
एग्रीमेंट जिसके तहत उन्होंने ये जो जापान की एक कंपनी थी सुजुकी उसके साथ में टाई किया, एग्रीमेंट किया, और साथ में ये मारुति सुजुकी एक कंपनी जो है अब कार की हम देख रहे हैं उसको लॉन्च किया, और ये काफी कम दाम में हमें ये काफी अच्छे फीचर्स इसमें प्रोवाइड कराए गए थे। तो हाँ सर, हमें ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि हम एक साथ तो बायकॉट करके चीजों को एकदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हमें इस मॉडल को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और सर ये रडार का एक एग्जांपल है 1918 में एयरक्राफ्ट, ये रडार HAL तेजस नाम का एक एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा था 1980 में, जो कि लगभग अभी पूरा हुआ है जाके, लेकिन फिर भी 70% जो इसके पार्ट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। सर यहाँ पे इंडिया में बनाने के बाद 40 सालों में भी हम इसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए इसको, मतलब कम्प्लीटली हम इसमें जो पार्ट्स हैं वो हम इंडिया में यूज नहीं कर पाए इंडिया के। तो सर हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा। बस मैं सर इतना ही ऐड करना चाहूँगी। ओके, थैंक यू अंजू, गुड पॉइंट्स। और किसी कुछ ऐड करना है अपने उस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे, और कुछ बोलना है? यस रश्मि, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? यस सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर तो नहीं आ रही लेकिन आ रही है, हम लोग सुन सकते हैं। हाँ बोलिए सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही, बोलिए। ओके सर। सर जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से जो हमारी आज की दुनिया है वो पहले की दुनिया से काफी बदल चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रधानमंत्री जी ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग का महत्व भी समझाया है तथा उन्होंने लोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए लोकल मैन्युफैक्चरिंग का, थैंक यू सर। मेरे ख्याल सभी लोगों ने अपना अपना अभी पॉइंट रख दिया है, और अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो अपना इनपुट दें स्टूडेंट्स के बारे में कि वो क्या समझते हैं, क्या इनको सुधार करना चाहिए और कैसे अपने इस स्किल को और बेहतर कर सकते हैं। हाँ देखिए, डिबेट तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, काफी टॉपिक्स इन लोगों ने डिस्कस किए हैं आत्मनिर्भर भारत को लेके। तो बट मुझे कुछ चीजें जो लगी थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से इनपुट देना चाहूंगा उसमें। तो जैसे सभी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि आत्मनिर्भर भारत के स्टार्ट करने का रीजन सिर्फ कोविड-19 डिजीज महामारी जब से आई है यही रीजन है। बट अगर आप थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो सिर्फ एक ये रीजन नहीं था। जब ये कोरोना की डिजीज आई है तो उसके साथ साथ जो है इंडिया चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट वाली चीज भी चालू हुई थी उस समय। तो इंडिया का ये भी फोकस रहा कि भाई आगे चल के मान लीजिए जो है किसी हॉस्टाइल नेशन के साथ वॉर हो, बॉर्डर पे लेके जो है तनाव बना ही रहता है। तो ऐसे में अगर हम लोग उनके ऊपर जो है डिपेंडेंट रहेंगे चाइना के ऊपर रॉ मटेरियल्स के लिए, फिनिश प्रोडक्ट्स या किसी भी चीजों के लिए हमारा कंज्यूमर उन पर डिपेंडेंट रहेगा, तो उसमें अगर वो लोग सप्लाईज रोक दें तो फिर भारत को दिक्कत आ सकती। तो एक रीजन ये भी था। दूसरा आप एक ये देखिए, इस समय जो है वर्ल्ड में ये चल रहा है कि यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर बहुत इस समय जो है जोर पकड़ी हुई है। वो लोग एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, उन लोगों के प्रोडक्ट्स के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप आए दिन जो है खबरों में सुनते रहते हैं। तो एक ग्लोबल सप्लाई चेन इस समय जो है चाइना से बाहर शिफ्ट हो रही है। और जैसा कि इंडिया का जो है फोकस रहता है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहे, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, तो अगर चाइना से जो है मैन्युफैक्चरिंग बाहर निकल के आ रही है तो हम लोग जो है किस तरीके से उसको बढ़ावा दे सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है चाइना से, तो मलेशिया या वियतनाम इन सब जगह ना जाके जो है इंडिया में आए। तो वो भी एक रीज़न था कि जो है क्यों जो है आत्मनिर्भर भारत को जो है लेके आया गया। और तीसरा एक बड़ा रीजन, जो बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे यहाँ जो माइग्रेंट लेबर अभी जो मूवमेंट हुआ है, मैं जैसे अभी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, तो मुझे यहाँ पे मालूम है कि यहाँ मेरी डिस्ट्रिक्ट से जो है 4.5 या 5 लाख माइग्रेंट लेबर का जो है पासेज हुआ है, क्योंकि ये गुजरात से लगी हुई डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की। तो अभी 4-5 लाख लोगों का जो है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ से पासेज हुआ है। तो अब ये लोग जब अपने जो है अपने गाँव या अपनी सिटी में जहाँ पे भी ये लोग जो है वापस जब गए हैं, तो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट का सोर्स या किसी तरीके से जब तक जो है काम उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कुछ जो है इनकम का सोर्स कुछ मिलता रहे। 1,500-2,000 रुपए जो महीने का उन लोग को मिल रहा है,
तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था क्यों आत्मनिर्भर भारत लेके आया गया है। अच्छा, एक टैगलाइन है। अब ये तो रीजंस हो गए, 3 या 4 रीजंस हैं जो कि बड़े बड़े मोटे मोटे रीजंस है कि क्यों लेके आया गया आत्मनिर्भर भारत। तो इस पे थोड़ा सा सिर्फ डायरेक्टली कोरोना से रिलेट करके नहीं, थोड़ा और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है। अच्छा, इसके बाद जो है आपकी आत्मनिर्भर भारत की एक टैगलाइन है वोकल फॉर लोकल। तो थोड़ा आप सभी का जो है इस पे जो है और फोकस रहना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी टैगलाइन है तो उस पर आप लोग को और स्ट्रेस करके भी जो है इसमें कैसे वोकल फॉर लोकल जो है मेंशन ना करके लोकल क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए भी क्या क्या करने की जरूरत है, तो उस पर भी थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए था। जैसे अभी आपको याद हो कि 1 या 2 साल पहले जो है एक सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम आई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके, एक जिला एक उत्पाद करके एक स्कीम आई थी, जिसमें जो है हर एक जिले में जो है एक एक प्रोडक्ट को चूज करके उसको बढ़ावा और उसकी उत्पादकता बढ़ाने की बात की गई थी। उसी तरीके से इसके अंदर आप जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं, भौगोलिक संकेतक कहते हैं उसे हिंदी में, तो उसको भी जो है बढ़ावा देने की जो है अगर आप जो है डिस्कशन इसके अंदर वोकल फॉर लोकल के अंदर ले आ लें तो अच्छा वो हो सकता है कि कैसे जो है किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको बाहर और कितने उसकी बिक्री बढ़ाई जा सके, तो वो भी जो है इसके अंदर ले आया जा सकता है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के अंदर अगर आपको फोकस करना हो तो एक ग्लोबल सप्लाई चेन वाली चीज आती है, तो उसमें भी आप जो है फोकस और बढ़ा सकते हैं कि कैसे जो है ग्लोबल सप्लाई चेन से अगर चाइना से शिफ्ट कर रही हैं तो इंडिया में अगर आ रही हैं तो उसके ऊपर भी और फोकस बढ़ाना चाहिए कि जैसे अभी आपके यहाँ इंडिया को जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, दवाइयाँ या इक्विपमेंट कुछ कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं और वो जो है पूरी दुनिया में जो है उनका जो है वितरण किया जाता है। बट अगर आप उसके अंदर देखिए तो फार्मा के अंदर जैसे अभी HCQ ही आप ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो आप लोग की ड्रग है जो कि कोरोना में यूज हो रही है, तो उसका जो है प्रोडक्शन से लेके पैकेजिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हर एक चीज आपको इंडिया में मिल जाएगी। बट जो उसका एक रॉ मटेरियल होता है जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API कहते हैं, वो आपका इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होता, वो पूरा का पूरा आपका जो है चाइना से इम्पोर्ट होता है। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये भी चीज है कि आपकी पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसकी जो है उसको मेंटेन करके रखा जा सके, तो उसके अंदर ये भी फोकस है कि आप पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन, आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पूरा उसके सप्लाई चेन आप इंश्योर कर सके, फ्रॉम एंड टू एंड इंश्योर कर सके। तो इसके अंदर इसके लिए जैसे आप फार्म इसमें HCQ में आपको जो API है उसका भी प्रोडक्शन जो है आपको उसकी सप्लाई इंश्योर कर सके आप अपने इंडिया के अंदर, रादर देन कि आप जो है चाइना पर डिपेंडेंट रहे हैं, किसी और नेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहे, आप उसको भी जो है इंश्योर कर सके। और एक चीज और थी पूरे डिस्कशन में, जैसे कुछ कुछ जगह तो जो है जैसे रिसेंट न्यूज आइटम से जो है रिलेट करके जो है वो करा गया डायरेक्टली, जैसे रिलेट करके कई जगह पे रिलेट किया गया कि भाई PPE प्रोडक्शन बढ़ गया है हमारे यहाँ, या फिर जो है ये हुआ कि जो है 2-3 जगह और हुआ कि जो है रिसेंट न्यूज आइटम से रिलेट किया गया, बट डायरेक्टली जो है आत्मनिर्भर भारत से जो चीजें ना रिलेट हो बट आप अगर उसको रिलेट कर ले आत्मनिर्भर भारत से, जैसे कि आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर एक वो है कि 6ठी से 8वीं क्लास की कक्षा के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है उसके अंदर, जो कि आप सीधे जो अगर वोकेशनल ट्रेनिंग जो है किसी यूथ को मिलती है तो आगे चल के जो है स्किल्ड हो जाएगा तो उसे जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो वो जो है कमा सकेगा, उसको इनकम मिल सकेगी, तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। डायरेक्टली रिलेशन नहीं है बट आप अगर जो है इस तरीके से रिलेट कर सकें चीजों को तो जो है वो आपकी जो है आंसर की क्वालिटी बहुत है, आपकी डिस्कशन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर देता है। इसी तरीके से आपने कि अभी 2 या 3 महीने पहले एग्रीकल्चर के अंदर एक 3 या 4 ऑर्डिनेंसेस ले आए थे भारत सरकार ने, उनमें से जैसे एक था कि जो है एग्रीकल्चर मार्केट को जो होते हैं अभी APMC जो मंडियां होती हैं उन पे जो है बेचने के लिए जो है प्रतिबद्ध होता है जो है आपका फार्मर जो होता है, बट अभी वो ऑर्डिनेंसेस के अंदर ये कर दिया गया कि फ्री कर दिया गया, भाई फार्मर जो है जिधर भी जाए प्राइवेट को बेचना चाहता है प्राइवेट को जाके बेच सकता है, मार्केट पे बेचना उसकी मर्जी, उसको जो है वो कर दिया गया है, तो उससे उसकी इनकम इंक्रीज होगी, वो आत्मनिर्भर होगा। तो यहाँ थोड़ी सी जो है क्वालिटी में जो है आपकी अगर आप इनडायरेक्ट चीजों को जो रिलेट कर दें अगर आप आत्मनिर्भरता से, आपने जो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है तो उसकी क्वालिटी आपकी जो है थोड़ा काफी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है आपकी क्वालिटी। अच्छा, एक और चीज जो है आत्मनिर्भरता के अंदर मुझे एक चीज ये लगी कि जैसे बहुत ज्यादा हम लोग जैसे बहुत टाइम से सुनते हैं मैन्युफैक्चरिंग, बट आत्मनिर्भर भारत की जब बात हो रही है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी
में जैसे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा आपकी डिपेंडेंट इकोनॉमी है, वो नेक्स्ट फेज डेवलप करेगी तो जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। आपकी ज़्यादातर जो वर्कफोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग में ही काम कर सकती है, उसी से थ्रू ही जो है मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करके वहीं पे एम्प्लॉयड होके तभी आत्मनिर्भर हो सकती है वर्कफोर्स और आपकी जो बड़ी पॉपुलेशन जो है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी जो है काफ़ी डिस्कशन होना चाहिए था। और एक और वो है कि आत्मनिर्भर के अंदर जैसे हम लोग जब बात करते हैं तो एक बड़ा वो आता है कि जो है कहीं ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तो बात नहीं करी जा रही है कि जैसे 1960s में जो है नेहरू जी की जो है मालोनोबिस जो मॉडल था उसके अंदर बात करी गई थी कि भाई हम लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे। तो कहीं ये जो है स्वदेशी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो नहीं, आत्मनिर्भरता से ये मतलब तो नहीं निकल के आ रहा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ वापस से 1960s में जा रहे हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए था कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं है। और आज का जो ग्लोबलाइज्ड माहौल है, ग्लोबलाइज दुनिया में हम जी रहे हैं, तो जहाँ ग्लोबल सप्लाई चेन की बात हो रही है और एक दूसरे के जहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सब चीज़ों की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये हम वापस 1960s वाली जो हमारी पॉलिसी थी जो कि काफ़ी फेल हुई थी, हमारा जो है 1965 में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन आ गया था, ये चीज़ वो नहीं है। तो ये चीज़ भी जो है जैसे आप कभी आंसर में लिखें तो ये चीज़ आप अगर मेंशन कर दें ये चीज़ अपने आंसर में, डिस्कशन में, डिबेट में, जहाँ पे भी है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। उससे आपको हो जाएगा कि आपको जो है पूरा हिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा मालूम है कि ऐसा कुछ आपकी हिस्ट्री में हुआ था और आप कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं, वैसा नहीं है, जो कि आगे चल के हमारे लिए क्राइसिस वाली सिचुएशन कुछ नहीं आएगी। तो ये चीज़ मुझे कुछ कुछ वो लगी। और एक चीज़ अच्छा मुझे कुछ चीज़ें जो है डिबेट में जो है कुछ कुछ अच्छा लगा कि जो है पूर्णिमा जी जो है जैसे हैं उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा जो है इसके बारे में पूरा अच्छे से जो है संक्षिप्त में बताया कि क्या क्या 5 फेजेस इसके बताए, 5 पिलर्स इसके बताए, फिर बताया कि फर्स्ट ट्रांच में, सेकेंड ट्रांच में, थर्ड ट्रांच में, फोर्थ ट्रांच में, इस तरीके से पूरा जो है उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो ये काफ़ी अच्छा था। और विजय लक्ष्मी जी जैसे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा एक चीज़ वो बताया कि जो है जैसे हम लोग 20 लाख करोड़ का फिगर मेंशन कर देते हैं, तो बट अगर उसको स्ट्रेस कर दें कि जो है अगर इसका जो है अनुमान लगाने के लिए कितनी बड़ी ये रकम है, अगर 10% ऑफ GDP मेंशन कर दें तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी उन्होंने जो है मेंशन करी है। और अंजू गंगवार जी ने जो है रिसेंट न्यूज़ के आइटम्स को जो है कुछ कुछ काफ़ी थोड़ा अच्छा मेंशन किया, PPE प्रोडक्शन की बात करी है, 5G नेटवर्क जो जियो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसकी बात करी है, माइग्रेंट लेबर को 1,500 रुपये देने की बात करी, वो अच्छा मेंशन किया है। और उन्होंने जो है 1980s में मारुति सुजुकी का जो एग्जाम्पल मेंशन किया वो थोड़ा काफ़ी अच्छा था। और तेजस जो एयरप्लेन है जो कि जो है उसको काफ़ी अच्छा मेंशन किया कि हमारे ये दिक्कत आई है जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हमारे थोड़ा दिक्कत आई है कि हम लोग लोकल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में थोड़ा पीछे रहे हैं। उसका एग्जाम्पल उन्होंने तेजस के थ्रू मेंशन किया कि 34 से 35 साल लग गए हमारी कंट्री को एक एयरक्राफ्ट डेवलप करने में, उसमें भी जो है आपकी 50% से ज़्यादा जो है उसके कंपोनेंट्स हैं और मेन कंपोनेंट उसका जो इंजन है वो बाहर से इम्पोर्टेड है, रशियन इम्पोर्ट का इंजन है। तो वो काफ़ी अच्छा मेंशन किया है। सौरभ ने जो है बड़ा अच्छा एग्जांपल जो है जापान का मेंशन किया है कि राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब उनकी इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर गई थी, उन लोगों का जो है रूइंस थी उसमें जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 उन्होंने कितना कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप किया, तो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेंशन किया उन्होंने सौरभ ने हिस्ट्री का। और सौरभ ने जो है चाइनीज बैन के ऊपर जो डिस्कशन किया है वो बड़ा अच्छा किया है कि भाई कोई भी बैन या कुछ आप पॉलिसी ले आए तो नीजक नहीं रहनी चाहिए, उसका स्टेप वाइज जो है बैन, या जैसे उन्होंने PP का एग्जांपल दिया कि जो है बैन सीधे नहीं किया, उसको धीरे धीरे जो है पहले प्रमोट किया। तो इसी तरीके से चाइनीज बैन ऐप को जो बैन किया गया है वो ना हो के जो है धीरे धीरे पहले आप अपने लोकल ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करिए, उसके बाद जो है बैन को आप अपने कुछ करना है जिससे कंज्यूमर ना इफेक्ट हो। तो ये चीज़ अच्छी है कही इन्होंने। और पब्लिक सपोर्ट की जहाँ तक बात करी गई, कोई भी अभियान जो है अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है तो जब तक पब्लिक जो है उसके लिए जो है इन्वॉल्व नहीं हो जाएगी, उसको जो है ओनरशिप नहीं लेगी पब्लिक, जब तक किसी अभियान की किसी स्कीम की, तब तक कोई स्कीम या अभियान सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। तो पब्लिक ओनरशिप एक अच्छी चीज़ जो थी वो मेंशन करी गई। और मुझे जैसे एक चीज़ें बताई गई कि काफ़ी लोग आप लोग जो है थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश की वो थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो मुझे अच्छा लगा कि सब लोग जो है ट्राई कर रहे थे, कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत भी हो रही थी इंग्लिश को करने में, बट दिस इज़ अ गुड एफर्ट कि आप जो है
कुछ अगर थोड़ा सा मिस्टेक से कुछ भी होती है, बट आप लोग इंग्लिश में बोलने का थोड़ा सा जो है अटेम्प्ट लीजिए। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगी कि सब लोग जो है इंग्लिश में बोलने का ट्राई कर रहे थे। तो ये चीज़ थी। और थोड़ा एक दो पॉइंट्स थोड़ा सा नेगेटिव मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि कभी भी जो है आप लोग अगर डिस्कशन करिए, आंसर्स मेंशन करिए, तो कम्युनल इश्यूज को थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करिए। कहीं भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या इस तरीके से मेंशन ना करिए, वो थोड़ा सा नेगेटिव आपके उसमें जो है इमेज पोर्ट्रे कर सकता है। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी इन जनरल बोल दीजिए, बट पर्टिकुलर कम्युनिटी ना मेंशन करिए, कभी भी ना मेंशन करिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपका ये इमेज जाती है कि ये बंदा या बंदी जो है थोड़ा कम्युनल है, इसके माइंडसेट थोड़ा सा बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है, कुछ थोड़ा सा वो इमेज आपकी थोड़ी चली जाती है। तो उसको जितना हो सके अवॉइड करें। इन जनरल मेंशन करना हो तो आप इन जनरल मेंशन करिए, वो आपका जो है डाइवर्स व्यू पॉइंट थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, बट पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है मत मेंशन करिए। और किसी ने जो है, एक लोगों ने मेंशन कर दिया था कि भारत जो है प्राचीन काल से दूसरों पर ज्यादा डिपेंडेंट रहा है, यह महात्मा गांधी जी दब गए। तो थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा अवॉइड करें कि अपने ग्रेट लीडर्स या अपने पास्ट को नेगेटिव स्पॉटलाइट में दिखाने का अवॉइड करें। तो मुझे पूरे डिबेट एंड डिस्कशन में ये चीज़ का इतना ही जो है समझ में आया। तो मेरी तरफ से फीडबैक रहेगा आप लोगों को। तो एक आध दो नेगेटिव हैं, तो उस पर नेगेटिव्स नहीं कहूँगा, थोड़ा सा वो है, उस पर आप वर्क कर लीजिए, ध्यान रखिए दिमाग में, बस वही बात है, नेगेटिव्स नहीं कहूँगा मैं। और कोई कुछ पूछना चाहेगा पार्टिसिपेंट सर से, कुछ डिस्कशन के बारे में, ऐसा कोई क्वेश्चन हो किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से, कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन? मेरे ख्याल से शायद किसी को कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और सर ने बहुत ही डिटेल्ड जो सबको इनपुट दिया है कि स्टूडेंट्स के बारे में किसका क्या अच्छा था और कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस बात से सब लोग बड़ा लाभान्वित होंगे, और जब हम लोग नेक्स्ट टाइम बैठेंगे डिस्कशन में तो शायद इन कमियों को इम्प्रूव कर चुके होंगे। और आज के सेशन में सर आए, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग में इतना बिजी शेड्यूल में समय निकालना लगभग इम्पॉसिबल जैसा होता है, फिर भी आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और हम लोगों को दिया और इनपुट दिए अपने। इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं, पूरा स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अमरीश जी, धन्यवाद अमरीश जी, धन्यवाद। ये अपॉर्चुनिटी जो आप लोग जो है स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी। हम लोग जैसे कॉलेज, हम लोग जब अंडर ग्रेजुएट की हम लोग की कॉलेज में थे, तो हम लोग को जैसे अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आता था कि कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि बड़ा नई फील्ड है, वो कैसे प्रिपेयर करें, तो थोड़ा गाइडेंस मिल जाए तो बड़ा हेल्प हो जाता है। तो आप बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म आप लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो लोग जो है थोड़ा रूरल एरिया से आ रहे हैं। जैसे 2-3 लोग मुझे रूरल एरिया के मिले इसमें, और काफ़ी लोग तो जो है इतने डाइवर्स, कोई बरेली से है, कोई लखनऊ से है, कोई इलाहाबाद, मेरे डिस्ट्रिक्ट से। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा गाइडेंस मिलती रहे, वो लोग इंटरेक्ट कर सकें, जो है जो ऑलरेडी जो है सर्विसेज में है, लोगों से इंटरेक्शन मिलता है तो अच्छी गाइडेंस थोड़ा सा मिल जाती है। और देखिए हम लोग भी जैसे जब स्टूडेंट वाली लाइफ में फेज में थे अपने कॉलेज में, हम लोग को भी समझ में नहीं आता था कि थोड़ा बड़ा वो रहता था कि ये करें ये ना करें, क्योंकि 10 जगह से 10 एडवाइस है, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। इतना ज्यादा जो है वाइड लोगों ने जो है वो भ्रम फैला रखा है, जो फैला रखा है। तो अच्छा वो आपने जो है वो कर रखा है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रखी है सारे स्टूडेंट्स को। तो हम लोग भी जो है इससे जुड़ने में हम लोग को भी अच्छा लगता है कि भाई हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे तो हम लोग को दिक्कत आती थी, कुछ आती थी, तो अब हम लोग रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि भाई नहीं, अब हम लोग जो अगर सर्विस में आ गए तो हम लोग को भी जो है हेल्प करनी चाहिए। उसके लिए आप माध्यम बन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू अगेन, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, हाँ जी।